वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हो सब? सो स्टार्टिंग विथ our today's chapter, we have started a history lesson, the nationalism in Europe. In the previous 2 or 3 classes, I gave you an introduction of what happened in Europe, what type of rule was there, and how changes started appearing. Then in next class we have discussed the painting that has been given in your book, made by the French artist. At that time it was considered as his utopian idea, but later it became a true picture of the world. We are now today democratic and socialist world. In the previous class, difference between nation state and modern state, how empires broke up, created nation states on the basis of some commonality, whether it was a race or a language or common descent. That nation state was created, but it was under monarchy, and later the monarchs were removed and had democracies, and now they are known as modern states. ये अभी तक का इंट्रोडक्टरी जो हमने पढ़ा है चैप्टर का, दैट इज इट. Now in a true sense we'll start with our first chapter, and the heading of the chapter today is the French Revolution and the idea of the nation. See, I told you earlier also that every change that has been started in the world is by French Revolution. So 9th में जहाँ हमने लेसन ख़त्म करा था वहीं से अब हम लेसन पिक करेंगे ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे. और लेसन हमारा ख़त्म हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन पे. मोनार्की वॉज रिमूव्ड, लुई 16 ही वॉज रिमूव्ड, देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस, देन फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, एंड दैट वॉज द प्रोसेस. तो नेपोलियन के आने के पहले और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1789 व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, some changes occurred in politics, in society. पॉलिटिक्स में ये कि मोनार्की ख़त्म हो गई, और सोसाइटी में क्या चेंजेस आए? रिमेंबर, सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी was divided into 3 estates. First estate, the clergies; second estate, the royal class; and the third estate were all the common people. All the privileges were enjoyed by the 2 estates, first 2 estates, while all the taxes were being paid by the third estate. ये उस समय का सिस्टम था. तो इसमें क्या चेंजेस आए? लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म came with the French Revolution in 1789. Nationalism, I told you the meaning, love for your nation. Nation I am talking, children, not the empire. I am talking about nation. The French people, they were inspired by this nationalism. They removed their monarch and had democracy in their country. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state. See, France was never under any other empire. Of course, France created empire. फ्रांस ने एक बहुत बड़ी अपनी empire बनाई थी, लेकिन फ्रांस कभी किसी के अंडर में नहीं रहा. वो शुरू से एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड. जो चेंजेस आए फ्रांस में, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen. This was the main change. Earlier, the French monarch was the ruler of the country. और सबसे बड़ा चेंज यही था कि वो जो sovereignty, what is the meaning of sovereignty? The freedom to take any decision. आप पर बाहर से अंदर से कहीं कोई दबाव नहीं होता. You are independent in yourself. तो अभी तक बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन द सोवरेनिटी वॉज इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंच मोनार्क,
But after French Revolution, it came into the hands of a body of French citizens. Whether you call it convention, whether you call it directory, लेकिन उनके हाथ में वो डिसीजन मेकिंग पावर आ गई थी. The revolutionary declared. What is the meaning of proclaimed? Declared. भाई एक तरह से ये declaration हो गया था after revolution से that it was the people who would henceforth. अब आगे से actual power, nation, ruling power किसके हाथ में होगी? Not the monarch but the people of the country. The French people. They are going to decide the fate, the destiny of their कंट्री. ये एक बहुत बड़ा डेक्लेरेशन था. माइक लगा के घोषणा नहीं करी थी, लेकिन इट वॉज लाइक अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि नाउ ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एंड नॉट द किंग. तो यही तो होती है डेमोक्रेसी. सो इट वॉज लाइक स्टार्टिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ये हुआ जस्ट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट द सोवरेनिटी केम इन टू द हैंड्स ऑफ French people, a body of French citizen instead of monarch. Then what happened? From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures. जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और किंग को हटा दिया गया, जो रूलर्स बने उस समय, दैट बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन कन्वेंशन, उसे कहा गया रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट चेंज किया था, मुनार्क को हटाया था. सो एज सून एज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वॉज मेड इन फ्रांस, दे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस चेंजेस, measures and practices that would create a sense of collective identity. अभी तक फ्रेंच सोसाइटी was divided into first estate, second estate and third estate. डिवाइडेड थी ना सोसाइटी. सो नोबिलिटी, क्लर्जी क्लास, बिशप्स, कॉमन मैन, बहुत डिवीजन थे सोसाइटी में. लेकिन अब ये डिविजन्स ख़त्म करने थे, क्योंकि ये जो डिविजन्स थे ये ओल्ड रेजीम के डिविजन्स थे, मोनार्की के टाइम के डिविजन्स थे. नाउ बिकॉज इट वॉज डेमोक्रेसी, जो कि बाद में रिपब्लिक बना, तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी ऑफ ऑल द फ्रेंच पीपल. तो कुछ स्टेप्स लिए गए. वो जो कुछ भी उनको डिवाइड कर रहा था, वो सब हटाया गया और कुछ न्यूनेस क्रिएट की गई. नाउ सो दैट एवरीबडी कुड कंसिडर देमसेल्व्स एज इक्वल. वो सोसाइटी के डिफरेंसेस जो थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एस्टेट के, उन्हें ख़त्म किया गया और इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए to create a sense of collective identity amongst the French people. अब ये बहुत important question है बच्चों, 5 marks का आता है ये. Points हैं यहाँ आपके, so prepare it in points. So these are the steps created to create a sense of collective identity among the French people. The idea of la patrie, that is the fatherland, and la citoyen, that is the citizen, ये French words हैं, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. 9th में पढ़ा था, a new French constitution was made and that constitution declared कि वो ख़त्म सब, first, second, third estate ख़त्म. This country is the fatherland of all and all the people who are living in the country will be the citizen. सबको क्या डिक्लेयर किया गया? The citizens. No first estate, no second estate, no third estate. Henceforth, आगे से सब क्या माने जाएंगे? The citizens. So that there will be a united community and they had equal rights. Then a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the formal royal standard. पहले किंग का फ्लैग होता था, रॉयल स्टैंडर्ड, उसे हटा दिया गया एंड अ न्यू फ्रेंच फ्लैग. फ्रांस का भी ट्राई कलर है, हमारा इंडिया का भी ट्राई कलर है. फ्रांस ऑल्सो हैज़ अ ट्राई कलर. इट वॉज क्रिएटेड अ न्यू फ्रेंच फ्लैग. एस्टेट्स जनरल, जहाँ पर तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते थे. इट वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स. रिमेंबर हु वर एक्टिव सिटीजन्स, 9th में पढ़ा था.
सो एस्टेट्स जनरल को अब कौन इलेक्ट करेगा? Those active citizens above the age of 25 and earning so much, giving taxes and all, they were active citizens. और estates general का name was changed as the National Assembly, elected by active citizens, and it was renamed as the National Assembly. ये states general नाम खत्म कर दिया. New hymns were composed, नए गाने लिखे गए. ओथ्स वर टेकन, है ना, देशभक्ति के लिए खूब ओथ ली गई. एंड मार्टियर्स, जो लोग ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन शहीद हुए थे, दे वर कमेमोरेटेड, उन्हें प्रेज किया गया, उनके प्रेज में बहुत कुछ लिखा गया, उन्हें ऑनर किया गया. ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन. अब देशभक्ति की बहुत ज़्यादा फीलिंग राइज हो रही है अमंग द फ्रेंच पीपल. हमारा देश, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. हाँ, वो डिवीजन हट गया सोसाइटी में. एवरीबडी वॉज सिटीजन एंड एवरीबडी वॉज इंस्पायर्ड बाय द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस. पूरे कंट्री की एक गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. पूरे कंट्री की पेरिस में एक गवर्नमेंट बनी विच इज गोइंग टू रूल द होल कंट्री. And it formulated uniform laws for all citizens within its territory. फ्रांस में रहने वाले लोगों के लिए, वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हों, सेम लॉज वर इम्प्लीमेंटेड, है ना. सिटीजन्स हैं सब, एंड दे हैव टू फॉलो सेम लॉज मेड बाय वन गवर्नमेंट. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड. ड्यूज मीन्स टैक्सेस, जो भी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में ड्यूटीज़ थी, कस्टम ड्यूटीज़ थी, सब हटा दिया. सब कुछ एक नेशनल लेवल पर किया गया. एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड. पूरी कंट्री के लिए सब कुछ सेम हो गया. अलग अलग रीजन्स अपने अपने लॉज नहीं चला सकते. वन कंट्री फ्रांस, वन गवर्नमेंट, वन लॉ to be followed by all the citizens. Regional dialects, local languages were discouraged. और कौन सी लैंग्वेज को एनकरेज किया गया? फ्रेंच, जो कि फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज है. As it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. So these were the various steps that were taken by the revolutionaries to create a feeling of unity in the country. All are citizens, one government, one law, one flag, everything was created one. ताकि वो जो डिवीजन था सोसाइटी में वो ख़त्म हो सके और उसकी जगह, है ना, एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो सके इन द नेशन. सब अपने आप को उस कंट्री का सिटीजन समझ सके. सो दीज वर द स्टेप्स टेकन. The revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. See, France free हो गया. France had democracy, France had republic. हम तो फ्री हो गए, ठीक है. अब हम क्या करेंगे? दूसरों के मामले में दखल देंगे, क्योंकि हमारा तो मैटर सॉल्व हो गया. हाँ, दूसरों के मामले में टांग अड़ाएंगे. और ये टांग क्या थी कि भाई फ्रांस की तो मोनार्की ख़त्म हो गई, लेकिन यूरोप के और कंट्रीज़ में तो मोनार्की है, भाई एम्पायर है. तो भाई हमने अपने कंट्री को तो फ्री करा लिया. नाउ वी आर गोइंग टू हेल्प द अदर पीपल ऑफ यूरोप, जो कि एम्पायर्स में रह रहे थे, जो कि डिक्टेटर्स मोनार्क्स वर लाइक बिग डिक्टेटर्स, दैट इज़ डेस्पोटिज्म. उनसे अब लोगों को फ्री कराएंगे. जैसे फ्रांस डेमोक्रेसी हो गया है, फ्रांस रिपब्लिक हो गया है, इन द सेम वे नाउ द फ्रेंच पीपल, द रेवोल्यूशनरी स्पेशली, दे टुक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब हम दूसरे कंट्रीज़ को भी मोनार्की से फ्री करेंगे. इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस. तो इट्स द टाइम ऑफ द ब्रेकिंग अप ऑफ एम्पायर्स. अब बड़ी बड़ी एम्पायर्स हम आगे पढ़ेंगे कैसे थी, उनका ब्रेकअप स्टार्ट होगा. And French people took on this responsibility to create nation states. ये अब उन्होंने जिम्मेदारी ली.
सो 1789 के बाद जस्ट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ये स्टार्ट हुआ. सी चिल्ड्रन, अगर लेसन के जैसे ये समझोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी. टेक इट एज स्टोरी. हिस्ट्री आफ्टर ऑल है क्या? एक कहानी है पास्ट की. कहानी के जैसे समझो. फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अब रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या चेंजेस आए, तो कहानी की जैसे एज अ स्टोरी अगर आप इसको लोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो एक स्टोरी आपको मैंने सुनाई है कि फ्रांस में क्या हुआ. गो थ्रू इट, लिसन इट अगेन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. विल कंटिन्यू tomorrow. Till then, keep reading.